breathe deeply. Open your eyes. This is the first step of the yoga. We can say this is the glimpse. So as we are sitting here and standing here on the occasion of Yog Divas, and why we are here and why we are celebrating and what is the importance of the yoga. So I will let you know. As we know that this is the day 21 June and we are celebrating the yoga. Yoga is not just about to some kind of the posture and the body language. It's all about the thing that you can connect through your mind, through can your body, and through can your soul. So, just about Vrikshasana. So, I will let you know how to do this. So, firstly, stand like that. So, if you are not comfortable, you can remove your shoes and slippers, whatever, and stand like that. And you can put your left hand or right hand, right heel or over this thing, and you raise your hand and inhale. Today is 21 June and this is a yoga day. Now we are going to do Anlom and Vilom. Like you did it like. So firstly put your hand like this on your nose and breathe. And second time you put your nose from left hand side nose and release your air. Now do this exercise from 1 to 2 times. Morning to all of you. Everyone know today is a yoga day. Yoga is a very beneficial for our mental health and physical health. First time the Narendra Modi organized the Yoga Day 2015, 21st June. So yoga is a very yoga is like a medicine for our health and balance our mental health and physical health. Everyone in morning, I used to go walk, morning walk and jogging also. But when I went to for graduation, it was in Lucknow. I was in hostel. I was not allowed to go for walking and jog. So I spent over there 3 years, and whole 3 years I analyzing. I was not able to give any kind of activity, to give a fitness. I was not I was somewhere I was lacking. I was not giving attention about my fitness. And when I returned from that place, went to Gorakhpur, I met a person who was who had a 110 kg weight, and he started to go yoga. And I used to go for computer class. Daily I was seeing, but and he was involved to go for yoga. And after 6 months, he was able to lose up to 25 kg weight. He looked very handsome and slim, trim guys, and he aware to us. Look at me, I'm so fit and hit, and I lose 25 kg weight. And he was not giving motivation, but we are internally more motivated in that time. And since that day, I started to do yoga. I was not knowing means more than 2 or 3 steps of yoga. I knew only Kapalbhati and Kapalbhati and Anulom Vilom, and this like it was happening in starting day when
was just aware, making us aware. और उसके बाद इसका जो अभी 11th इंटरनेशनल योगा डे का जो थीम है वो है वन अर्थ वन नेशन, मतलब एक पृथ्वी वन का स्वस्थ होना, एक समान स्वस्थ होना उतना ही आवश्यक है जितना वो क्या कहते हैं पृथ्वी की स्वास्थ्य का होना, स्वस्थ होना ज़रूरी, क्योंकि आजकल पृथ्वी लगभग पूरी एकदम दूषित हो चुकी है, उसकी हेल्थ एकदम बेकार हो चुकी है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जैसे बहुत सारी समस्याएं बढ़ रही है। तो इससे योगा के थ्रू हम व्यक्तियों को हेल्दी करते हैं, और अगर योगा की कुछ प्रोटोकॉल बताए गए जैसे हेल्दी अर्थ के बारे में, तो जब अर्थ हेल्दी होगी तो व्यक्ति के खान पान हेल्दी होगा और वो स्वयं ही योगा को अपनी लाइफ में अप्लाई करके और अपनी डे टू डे लाइफ में शामिल करके अपने आप ही हेल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का वो योगा डे का, जो हम लोग जिसके लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो बैठने के लिए चलो मैं भी इसी पे बैठ जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास मैट था, अगर पता होता तो मैट ले आती हूँ। प्रार्थना करते हैं स्टार्टिंग प्रेयर के लिए, ध्यान मुद्रा में बैठ जाइएगा। लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी गहरी सांस बाहर की ओर छोड़ देंगे। इनहेल ब्रीथिंग एंड एक्सहेल कंप्लीट। जैसे आप कोई चीज़ भरते हो, गाड़ी में आप हवा भरते हो, बाहर निकालते हो, पूरी सांस को, अंदर की पूरी सांस को बाहर की ओर छोड़ देंगे। इनहेल एज मच एज यू कैन, जितना आप इनहेल कर सकते हो उतना इनहेल करेंगे, एंड एक्सहेल एज यू इनहेल, मतलब जितना आपने इनहेल किया है उतना आपको एक्सहेल बाहर करना है। जिससे आपके शरीर में जो पूरी रात में आप खाना खाते हो ना, तो उससे टॉक्सिन्स बनते हैं, वो सारे टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से बाहर निकलते हैं। ओके, अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे स्टार्टिंग प्रेयर के लिए। आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद। लेट्स चैंट ओम फॉर अ व्हाइल। एक बार ओम का उच्चारण करें। सभी के संगठन के लिए मंत्र का उच्चारण करेंगे। संगठन मतलब एकता, और एकता से ही हम कोई भी काम, कोई भी एम प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए मंत्र है संग संगच्छत्वं संवदत्वं। आप लोग भी बोलिएगा एक बार, संगच्छत्वं संवदत्वं संभो मनासि जानतां, संभो मनासि जानतां, देवा भावे यथा पूर्वे, संजानाना उपासते, संजानाना उपासते। अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे और अपने चेहरे पर स्पर्श करेंगे। थोड़ा तेज बोलिए, नहीं पीछे तक आवाज़ नहीं आ रही। अपने कमर पे हाथ को रखेंगे और अपवर्ड एंड डाउनवर्ड देखेंगे। ठीक है, अपवर्ड वंस, सेंटर में आएंगे, देन डाउनवर्ड नीचे। आपके चिन आपके चेस्ट में टच होने चाहिए, फिर ऊपर एंड देन नीचे। एक और बार अप लेते आओ, कोई करेगा। एंड डाउन। अगेन लेफ्ट राइट साइड एंड सेंटर, देन राइट साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, जितना पीछे हो सकेगा उतना पीछे आप देखने की कोशिश करेंगे। सेंटर पे आएंगे, देन लेफ्ट साइड। आपके पूरी गर्दन ट्विस्ट होनी चाहिए, बैक की ओर, पीछे की ओर। जी, स्विच करते रहिए, फाइट करिए। आपका शरीर एकदम स्थिर होगा, बस आपका गर्दन ही पीछे की ओर
सेंटर में और आगे की ओर मूव करेगा। ठीक है, 5 टाइम हो गया। अगेन अब हम करेंगे सर्कल। सर्कल अपने चिन को चेस्ट में टच कराएंगे, फिर अपनी पूरे हेड को राउंड राउंड घुमाएंगे। क्लॉकवाइज 5 टाइम एंड एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम। एंटी क्लॉकवाइज। ट्रेन चलाए। अगेन हो गया। उसके बाद अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए अपने कान पे रखिए और अपने हेड को राइट साइड टर्न करिए। होल्ड करिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अगेन दूसरे हाथ से। आप लोग जब पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं ना, कंधे में दर्द हो जाता है, तब भी आप ये कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। सीधे खड़े होंगे। अपने हाथों को स्ट्रेच करते हुए सामने से ऊपर स्ट्रेच, जितना ज़्यादा हो सके ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे अपनी बॉडी को। होल्ड करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलीज। रिलीज करेंगे एज इट इज। अगेन हाथों को स्ट्रेच करते हुए बीच में लेके आएंगे और इसको साइड में जितना ज़्यादा आप ओपन कर सकते हैं, जितना ज़्यादा साइड की तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं करिए। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से ही आप अपने शोल्डर पे हाथों को रखिए। होल्ड करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मूव कराइए क्लॉकवाइज। 3 टाइम क्लॉकवाइज एंड 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। रिवर्स। हो गया। देन यहीं से ही आपको अपने हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है। होल्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स डाउन। उसके बाद अपने हाथों को यहाँ पे लॉक करिए यहाँ पे और टर्न करना है बैक साइड देन दिस साइड, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। स्टार्ट 1 2 9 10। रिलैक्स करिए। अब करना है उत्कट आसन, जिसको कहते हैं चेयर पोज। इसके लिए आप बराबर शोल्डर लेंथ में अपने पैरों को खोलेंगे, ओपन करेंगे। हाँ, साइड भी हो सकता है। अपने हाथों को सामने ओपन करेंगे और अपने बैक को पीछे पुश करते हुए आप चेयर पोजीशन में आ जाएंगे ऐसे। होल्ड है 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वापस आ जाएंगे, हाथों को नीचे कर दीजिए। ये थे हमारे वार्म अप के जो आसन थे, ये हैं। उसके बाद हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए सीधे खड़े रहेंगे, बहुत ही थोड़ा सा गैप बनाइएगा पैरों के बीच में और अपने हाथों को ऊपर लॉक कर दीजिए। ऊपर स्ट्रेच करिए जितना ज़्यादा हो सके, पहले बॉडी को ऊपर खींचेंगे और फिर अपने हील्स को ऑफ कर देंगे। ठीक
ठीक है, होल्ड हियर, 1 2, एक ऑब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करिए तो गिरेंगे नहीं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, relax and out. अगेन अब करना है वृक्षासन, जो कंसंट्रेशन बढ़ाने का एकदम रामबाण तरीका है, ठीक है। और इसमें आपको बैलेंस, आपकी मतलब बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपने पैरों को बराबर ओपन करिएगा, अपने एक पैर को उठा के थाइस पे रखिए, होल्ड करिए। आप अपने हाथों को यहाँ भी जोड़ सकते हैं और ऊपर ले जाके भी जोड़ सकते हैं। होल्ड हियर, 1 2, एक ऑब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करेंगे तो नहीं गिरेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, अपने हाथों को पहले नीचे करिए, देन बैक डाउन। दूसरे पैर से, अगर आपने लेफ्ट से किया था देन राइट से करना है। पहले बैलेंस बनाइए यहाँ पे रुक के, फिर अपने हाथों को ऊपर जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अगेन हमें करना है पादहस्तासन। आपने सूर्य नमस्कार कितने में किया है? ये सूर्य नमस्कार का तीसरा पोजीशन है पादहस्तासन, ठीक है। हाथों को स्ट्रेच करते हुए ऊपर उठाएंगे, यहाँ पे स्ट्रेच करेंगे जितना ज़्यादा हो सके, फिर अपने बैक को पीछे की ओर करते हुए अपने हाथों को सामने की ओर स्ट्रेच करते हुए डाउन जाएंगे, होल्ड करेंगे। यहाँ पे अपने पैरों को टच करिए जो कर पा रहे हैं, बस अपने नीज को बिल्कुल भी फोल्ड नहीं करिएगा, नी बिल्कुल आपकी फोल्ड नहीं होगी, होल्ड करिए यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वापस आना है उसी तरह जिस तरह हम गए थे, आप एंड जेंटली डाउन योर हेड, बैक नहीं करना। आप अपने बैक को अपने हाथों से सपोर्ट करेंगे, उसके बाद जितना हो सकेगा ऐसे पीछे की ओर झुकना है, ठीक है। गो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे, इनहेल एंड एक्सेल। सामने आ जाइए, अपने पैरों को अपने शोल्डर लेंथ में या उससे ज़्यादा के लेंथ में भी आप ओपन कर सकते हैं। अब हमको करना है त्रिकोण आसन, ठीक है, ट्रायंगल जैसा शेप बनाना है। तो बॉडी को एकदम, पैरों को वाइड शोल्डर लेंथ से बाहर ओपन करेंगे, हाथों को खोलेंगे अपने शोल्डर लेंथ पे, देन अपने राइट हैंड से राइट पैर को छुएंगे और आपकी जो दृष्टि होगी, आपकी जो आई साइड होगी, वो आपकी बाएं हाथ के ऊपर, बाएं हाथ पर रहना चाहिए। होल्ड करिए, अगर आप नहीं देख पा रहे तो ऊपर से करके आंखें बंद भी कर सकते हैं। होल्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वापस आ जाएंगे। अब यहीं से हम लेफ्ट साइड जाएंगे, ठीक है, एज द सेम जैसा आपने किया वैसे सेम ही। होल्ड करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। स्लोली डाउन योर हैंड एंड अपने पैरों को समेट लीजिए।
अगला आसन है बैठ कर किया जाने वाला आसन। आप सभी लोग फिर से बैठ जाएंगे। और लंबी गहरी सांस बाहर की ओर छोड़। अब करते हैं बद्धकोण आसन। बद्धकोण आसन मतलब बटरफ्लाई पोज। पीछे नहीं सुनाई दे रहा। सुनाई नहीं दे रहा? अरे तो आगे आते हैं। मैं और तेज बोलने की कोशिश करती हूँ। उसके लिए आप अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे और अपने हाथों से पैरों को ग्रैब करेंगे। दिखाई दे रहा है ना? ठीक है। अपने पैरों को यहाँ पे लॉक करेंगे हाथों से। उसके बाद जितना ज़्यादा पास में आप रख सकते हैं रखिएगा, और अगर नहीं जितना हो पा रहा है उतना ही करिए। मूव कराना है आपको, 20 to 30 टाइम मूव कराना है। मैं काउंट कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड। पैरों को और खींचिए आगे की तरफ और होल्ड करिए। जितना ज़्यादा हो सके पुश करिएगा पैरों को नीचे ज़मीन की तरफ। होल्ड हियर। इनहेल एंड एक्सहेल। लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी गहरी सांस बाहर की ओर छोड़ देंगे। आवाज के साथ सांस नहीं लेना, खर्राटे नहीं लेना, सांस लेना। इनहेल एंड एक्सहेल। रिलीज करेंगे। अब पैरों वज्रासन में आएंगे। समेटिए 1 by 1 वज्रासन में बैठ जाएंगे। अपने पैरों के ऊपर बैठना है आपको। मैं साइड इसलिए हो गई ताकि आप सब लोग को ऐसे ये पैर ऐसे फोल्ड करके, हाँ ऐसे। हाँ, एकदम सही। पैरों के ऊपर हाँ। बैठिए। ये एकमात्र ऐसा आसन है जिसको खाना खाने के बाद करना है। ये हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा करता है। ऐसे। पैर को ऐसे पूरा फोल्ड करना नीचे, जैसे नमाज पढ़ा जाता है वैसे। चलो सीखे ट्रेनिंग लो। हम कोई भी बैठने वाले आसन तभी करते हैं जब हम उसमें कंफर्टेबल होते हैं। आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए और कंफर्टेबली, जैसे आपकी जो नॉर्मल ब्रीदिंग है, नॉर्मल ब्रीथ करते हुए अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करिए कि आपकी ब्रीदिंग कैसे। आप नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं, देन आपके थ्रोट में आता है एयर पाइप, लंग्स, स्टमक, देन आपके पूरे शरीर में कैसे पूरी बॉडी में जाता हुआ आपके शरीर से बाहर निकल रहा है। ये आप विजुलाइज करिए आंखें बंद करके, और आपके दोनों हाथ आपके पैरों पे होने चाहिए। इनहेल एंड एक्सहेल। विजुलाइज करिए आंखें बंद करके। आप यहीं से आंखें खोलिए, कॉन्शियस उसमें आइए। यहाँ से ही आपको अपनी नीज पे खड़े होके अपने घुटनों पे ऐसे खड़े हो जाइएगा। पैरों को थोड़ा सा दूर कर लीजिए। अब आपको करना है उष्ट्रासन। एक होता है हाफ उष्ट्रासन, एक होता है फुल उष्ट्रासन। पहले आपको अर्ध उष्ट्रासन करना है, फिर आपको पूर्ण उष्ट्रासन करना है। उस अर्ध उष्ट्रासन करने के लिए आप अपने हाथों से अपने बैक को सपोर्ट करेंगे, पीछे की ओर सर को डाउन करेंगे, ठीक है।
होल्ड करिए, कमर से डाउन करना है, पूरा शरीर लेके नहीं जाना वरना गिर जाओगे पीछे। होल्ड करिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। अब करना है पूर्ण उष्ट्रासन। उसके लिए आपका दोनों हाथ बराबर होगा, एक हाथ ऊपर से लेके जाके अपने पैरों को टच करेंगे, दूसरा भी टच करेंगे। होल्ड करिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। सर को भी आप डाउन कर सकते हैं। 7 8 9 12 13 14 15। गो। 1 2। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अरे मैम बस करूँगी, वापस आ जाएंगे। लेके जाइए, लॉक करिए यहाँ पे। देन इसको आप अपने बैक शोल्डर पे, यहाँ पे बैक, यहाँ पे ओपन करेंगे, टच कराएंगे और यहाँ पे जितना ज़्यादा हो सके अपनी चेस्ट को ओपन करेंगे और अपने हाथों को बैक लेके जाएंगे। होल्ड करिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आपके हाथ आपके कान के पास होने चाहिए। ये ऐसे नहीं करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे। अगेन वापस आ जाएंगे। योगा का सबसे ज़्यादा बेनिफिट तब मिलता है जब आप हर आसन के बाद कम से कम 3 बार लंबी गहरी सांस लें। उससे आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा वो। ठीक है, अपने पैर को बाएं या दाएं पैर को मोड़ेंगे और अपने दूसरे पैर के बगल में घुटने के पास रख देंगे। ठीक है, फिर अपने जो भी पैर आपने मोड़ा है उसके पंजे को, पैर के पंजे को हाथ से टच करेंगे और होल्ड करिए। अपने हाथ को पीछे जितना ज़्यादा ले जा सकते हैं, जितना ज़्यादा पीछे लेके जाएंगे। ये ट्विस्टिंग पोस्चर है। ठीक है, होल्ड करिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाथ एकदम सीधे होने चाहिए, मुड़े नहीं। 14 15। वापस आ जाएंगे, पैरों को सीधा दूसरे पैर से मोड़ेंगे, साइड में रखेंगे। अगेन उसी हाथ से टच करेंगे और पीछे वाले हाथ की तरफ 2 3 4 11 12 13 14 15। वापस आ जाएंगे। ये है ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा आपके कंसंट्रेशन स्पैम को बढ़ाता है। Inhale and exhale. Inhale and exhale. जब आपको इनहेल करने के लिए बोला जाए तो आप अपनी ब्रीदिंग को विजुअलाइज करिए। ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करने के लिए बोला जाए तो विजुअलाइज करना है आपको कि आसपास जितनी भी पॉजिटिविटी है आपके सराउंड में, वातावरण में, एनवायरनमेंट में, वो सभी आपके शरीर में सांस के थ्रू, ब्रीदिंग के थ्रू आपके शरीर में जा रही है और आपके शरीर के प्रत्येक अंग में विचरण करते हुए शरीर के प्रत्येक भाग को सकारात्मकता, ऊर्जा और एनर्जी से भर रही है। कंसंट्रेट करिए अपनी ब्रीथिंग पे, आंखें बंद करके।
अब हमें करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसके लिए आप अपने हाथ की पहली 2 उंगली को ये इसे डाउन करेंगे। छोड़िए, ये मत करिए। आप नॉर्मली दाहिने नाक से सांस लेंगे, बाएं नाक को बंद करते हुए। बाएं नाक को बंद करेंगे, दाहिने नाक से सांस लेंगे और फिर लंबी गहरी सांस लेके दाएं नाक को बंद करके बाएं नाक से छोड़ देंगे। फिर बाएं नाक से सांस लेंगे और ये प्रक्रिया आपको 5 बार करनी है। ठीक, इनहेल, आंखें बंद करके प्राणायाम करिए, कंसंट्रेट करिए उस पर। रिलैक्स, दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में। नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल। अब हम करेंगे शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम करने के लिए आप अपने दांतों को दबाएंगे ऐसे, ठीक है। मुंह ओपन करें, मुंह खुला रहेगा, दांतों को आपस में दबाएंगे। मुंह से सांस लेंगे और सांस जब लेंगे तो आपके मुंह से आवाज़ आनी चाहिए और सांस आपको नाक से छोड़ना है ऐसे। मैं एक बार बता दे रही हूँ, उस हिसाब से करिएगा। मुंह बंद करेंगे, फिर सांस को बाहर छोड़ देंगे। इसमें सी की आवाज़ आती है, इसलिए इसका नाम पड़ा है शीतकारी। ठीक है, स्टार्ट। 5 बार करना है। ओके, इसके फायदे अभी मैं बाद में बताती हूँ। शीतकारी है जिसको हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम है, मतलब गर्मियों में बहुत ज़्यादा उसको गर्मी से कहते हैं ना, इनकी गर्मी की वजह से मौत हो गई, ठीक है। तो वो हीट स्ट्रोक की वजह से होता है। हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए शीतकारी किया जाता है। इसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, गर्मी और ठंडी को मतलब बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस करता है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, और आपको आपका मन और मस्तिष्क शांत रखता है, शरीर को शांत रखता है, एकदम काम, जैसे कहते हैं ना, एकदम शांत रखने का काम करता है। अगला है भ्रामरी प्राणायाम, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए। अभी रिसेंटली एक रिसर्च हुआ है जिसमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति 2 से 3 बार पर डे भ्रामरी प्राणायाम करता है तो उसके शरीर की, उसके मस्तिष्क के जो अल्फा रेडिएंट होते हैं वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे कंसंट्रेशन और कोई भी काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, वो मेमोराइजेशन बढ़ जाता है और आपको चीज़ें ज़्यादा देर टाइम तक याद रहती है। जैसे अभी वृद्धों में होने, मतलब वृद्धों में नॉर्मली होता है, बट अब यंगस्टर्स में भी होने लगा है डिमेंशिया की प्रॉब्लम, जिसमें लोग भूल जाते हैं चीज़ें। धीमे धीमे अपने पहले कान को खोलेंगे, फिर अपनी आँख से अपने हाथ को उठाएंगे, में आएंगे या फिर बुद्धा पोज में। दोनों हाथों को गोद में रखेंगे, इनहेल करिए और एक्सहेल करिए।
कोई टेंशन नहीं, शांत। हाथ अपनी आती जाती सांस। दोनों हाथों को जोड़ेंगे फॉर द क्लोजिंग प्रेयर। हाथों को जोड़िए, एक बार लंबा ओम का उच्चारण करेंगे। सभी के सुख, समृद्ध और सौभाग्यशाली जीवन की कामना करते हुए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। सही है दादा, करे ले लीजिए। शांति शांति शांति। अब अपने दोनों हाथों को रख लेंगे, आप अपनी रब करेंगे। जब आपको गर्माहट का अनुभव हो तो आप अपने फेस पर स्पर्श करें, थोड़ा सा जेंटली प्रेस करिएगा अपने फेस पर। अगेन एक बार और रब करेंगे हाथों को और अपने फेस से अपने शरीर के आंखों में स्पर्श कराते हुए जैसे आप अपने शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर फेंक रहे हैं, ऐसे बाहर की ओर फेंक रहे हैं, झाड़ दीजिए बाहर। ओके, फिर आप दोनों हाथों को अपने गोद में रखेंगे। थोड़ी देर वो सभी आपके शरीर, मन एवं मस्तिष्क में समाहित हो रहे हैं। आपका शरीर स्वस्थ, मन शांत, चित्त आपका एकाग्र हो रहा है। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपको जो कुछ भी दिया है वो सभी पर्याप्त है, आप सभी खुश हैं, संतुष्ट हैं। फिर धीमे धीमे अपने आंखों को खोलिए और सबसे पहले पृथ्वी माता की ओर देखकर उन्हें प्रणाम करें, जो हमारा पालन पोषण करती है और हमें हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, हमारा जीवन अच्छे से चले इसके लिए हमें सारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इसके बाद अपने आसपास के वातावरण को देखिए और अपने दिन की शुरुआत करें। थैंक यू सो मच। तुम नहीं रहोगी क्या वीडियो में?